हम पढ़ेंगे नंबर्स 20 चैप्टर 21 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से। नंबर्स 20 चैप्टर 21 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आत्मा, आप सच्चाई को हमारा सामना कराइए, हमें कन्फ्रंट कराइए सच्चाई के साथ। झूठ को पिता परमेश्वर के आत्मा हम झूठ को पहचान पाए, झूठ को पर्दाफाश कीजिए और झूठ को ताकत में तोड़ दीजिए। जो भी ताकत ऊंचा करके वो हमें फंसाए रखा है उसको तोड़ दीजिए और हमें सच्चाई के अंदर उतार कर लाइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। नंबर्स चैप्टर 20। द डेथ ऑफ मिरियम, मोसेस smiting the rock bringeth forth water. Aaron's death, Eleazar succeeded him. First verse. Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month, and the people abode in Kadesh, and Miriam died there, and was buried there. And there was no water for the congregation, and they gathered themselves together against Moses and against Aaron. And the people chode with Moses and spake, and saying, Would God that we had died when our brethren died before the Lord! And why have ye brought up the congregation of the Lord into this wilderness, that we and our cattle should die there? And wherefore have ye made us to come up out of Egypt, to bring us in unto this evil place? It is no place of seed, or of figs, or of wines, or of pomegranates, neither is there any water to drink. And Moses and Aaron went and from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared unto them. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, Hear now, ye rebels, must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. And the Lord spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them. This is the water of Meribah, because the children of Israel strove with the Lord, and he was sanctified in them. And Moses sent messengers from Kadesh unto the king of Edom. Thus said thy brother Israel, Thou knowest all the trouble that hath befallen us, how our fathers went down into Egypt, and we have dwelt in Egypt a long time. And the Egyptians vexed us and our fathers. And when we cried unto the Lord, he heard our voice, and sent an angel, and hath brought us forth out of Egypt. And behold, we are in Kadesh, a city in the uttermost of thy border. Let us pass, I pray thee, through thy country. We will not pass through the fields or through the vineyards, neither will we drink of the water of the wells. We will go by the king's highway. We will not turn to the right hand nor to the left, until we have passed thy borders. And Edom said unto him, Thou shalt not pass by me, lest I come out against thee with the sword. And the children of Israel said unto him, We will go by the highway, and if I and my cattle drink of thy water, then I will pay for it. I will only, without doing anything else, go through on my feet.
And he said, Thou shalt not go through. And Edom came out against him with much people and with a strong hand. Thus Edom refused to give Israel passage through his border. Therefore Israel turned away from him, and the children of Israel, even the whole congregation, journeyed from Kadesh and came unto Mount Hor. And the Lord spake unto Moses and Aaron in Mount Hor by the coast of the land of Edom, saying, Aaron shall be gathered unto his people, for he shall not enter into the land which I have given unto the children of Israel, because ye rebelled against my word at the water of Meribah. Take Aaron and Eleazar his son, and bring them up unto Mount Hor, and strip Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son, and Aaron shall be gathered unto his people, shall die there. And Moses did as the Lord commanded, and they went up into Mount Hor in the sight of all the congregation. And Moses stripped Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son, and Aaron died there in the top of the mount. And Moses and Eleazar came down from the mount, and when all the congregation saw that Aaron was dead, they mourned for Aaron 30 days, even all the house of Israel. Chapter 21. The people murmuring are plagued with fiery serpents, but healed by a brazen serpent, etc. First verse. And when King Arad the Canaanite, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies, then he fought against Israel, and took some of them prisoners. And Israel vowed a vow unto the Lord, and said, If thou wilt indeed deliver this people into my hand, then I will utterly destroy their cities. And the Lord hearkened to the voice of Israel, and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities. And he called the name of place Hormah. And they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom. And the soul of the people was much discouraged because of the way. And the people spake against God and against Moses, Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loath this light bread. And the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole. And it shall come to pass that every one that is beaten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. And the children of Israel set forward and pitched in Oboth, and they journeyed from Oboth and pitched at Ejiabarim in the wilderness, which is before Moab, toward the sunrising. From thence they removed and pitched in the valley of Zared. From thence they removed and pitched on the other side of Arnon, which is in the wilderness that cometh out of the coasts of Amorites. For Arnon is the border of Moab, until Moab and the Amorites. Wherefore it is said in the book of the wars of the Lord, what he did in the Red Sea and in the brooks of Arnon, and at the stream of the brooks that goeth down to the dwelling of Ar, and lieth upon the border of Moab. And from thence they went to Beer, that is the well whereof the Lord spake unto Moses.
Gather the people together, and I will give them water. Then Israel sang this song, Spring up, O well, sing ye unto it. The princes digged the well, the nobles of the people digged it by the direction of the lawgiver with their staves, and from the wilderness they went to Matana, and from Matana to Nahaliel, and from Nahaliel to Bamoth, and from Bamoth in the valley that is in the country of Moab to the top of Pisgah, which looked toward Jeshimon. And Israel sent messengers unto Sihon, king of the Amorites, saying, Let me pass through thy land. We will not turn into the fields or into the vineyards. We will not drink of the waters of the well, but we will go along by the king's highway until we be past thy borders. And Sihon would not suffer Israel to pass through his border. But Sihon gathered all his people together and went out against Israel into the wilderness. And he came to Jahaz and fought against Israel. And Israel smote him with the edge of the sword, and possessed his land from Arnon and Jabbok, even unto the children of Ammon, for the border of the children of Ammon was strong. And Israel took all these cities, and Israel dwelt in all the cities of the Amorites, in Heshbon, and in all the villages thereof. For Heshbon was the city of Sihon, the king of the Amorites, who had fought against the former king of Moab, and taken all his land out of his hand, even unto Arnon. Wherefore they that speak in Proverbs say, Come into Heshbon, let the city of Sihon be built and prepared, for there is a fire gone out of Heshbon, a flame from the city of Sihon. It hath consumed Ar of Moab, and the lords of the high places of Arnon. Woe to thee, Moab, thou art undone, O people of Chemosh. He hath given his sons that escaped and his daughters into captivity unto Sihon, king of the Amorites. We have shot at them. Heshbon is perished even unto Dibon, and we have laid them waste even unto Nophah, which reacheth unto Medeba. Thus Israel dwelt in the land of the Amorites, and Moses sent to spy out Jazer, and they took the villages thereof, and drove out the Amorites that were there. And they turned and went up by the way of Bashan, and Og, the king of Bashan, went out against them, and all his people, to the battle of Idrai. And the Lord said unto Moses, Fear him not, for I have delivered him into thy hand, and all his people and his land. And thou shalt do to him as thou didst unto Sihon, king of the Amorites, which dwelt at Heshbon. So they smote him and his sons and all his people, until there was none left him alive, and they possessed his land. हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक 20 अध्याय और 21 अध्याय। बीएसआई बाइबल में से मूसा और हारून का पाप और उस पाप का दंड। 20 अध्याय पहले वचन से। पहले महीने के सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनाई नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं, और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है। वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली
मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगा। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दो बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। एदोमियों द्वारा रास्ता न देना। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे, तेरा भाई इस्राएलियों कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं, जो तेरी सीमा पर है। अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर न चलेंगे और कुओं का पानी न पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तो मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इसराइलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क चलेंगे और यदि हम और हमारे पशु तेरे पानी पिए तो उसका दाम देंगे और हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने न पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इसराइल को अपने देश के भीतर से होकर जाने से इनकार किया, इसलिए इसराइल उसकी ओर से मुड़ गए। हारून की मृत्यु 22 वचन से आगे। तब इसराइलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई और एदोम देश के सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इसराइलियों को दिया है। इसलिए तो हारून और उसके पुत्र एलियाजार को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजार को पहना। तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतारकर उसके पुत्र एलियाजार को पहनाए और हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजार पहाड़ पर से उतर आए और जब इसराइल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इसराइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। कनानी राजा पर विजय 21 अध्याय पहले वचन से। तब अराद का कनानी राजा जो दक्षिण देश में रहता था
यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिए आए थे उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में कर दे तो हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इस्राएल की यह बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया, पीतल का बना सर्प। फिर उन्होंने होर पहाड़ी से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश में बाहर बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के किनारे बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डराने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिस जिस ने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। होर से मोवाब की ओर यात्रा। फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम नामक डीहो में डेरे डाले, जो पूरब की और मोआब के सामने में के जंगल में है। वहां से कूच करके उन्होंने जरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहां से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है उसकी परली ओर डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में बाहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है, जो मोवाब की सीमा पर है। फिर वहां से कूच करके वे बैर तक गए। वहां वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। उस समय इस्राएल ने यह गीत गाया, वे कुएं उमड़ आ, हे कुएं उमड़ आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसको हाकिमों ने खोदा और इसराइल के रईसों ने अपने सोटों और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मताना को और मताना से नहलियल को और नहलियल से बमोत को और बमोत से कूच करके उस तराई तक जो मोवाब के मैदान में है, और पिसगा के उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है पहुंच गए। सिहोन और ओग राजाओं की पराजय। 21 वचन से आगे। तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सिहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाख की बारी में न जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सिहोन ने इस्राएल को अपने देश से होकर जाने न दिया, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया, और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों की सीमा थी उसके देश के अधिकारी हो गए। अम्मोनियों की सीमा दृढ़ थी, इसलिए इस्राएल ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिया और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके पास पास के नगरों में रहने लगे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़ के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके
हाथ से छीन लिया था। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। हे मोआब, तुझ पर हाय, कर्मोश देवता की प्रजा नष्ट हुई। उसने अपने बेटों को भगेड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। हमने उन्हें गिरा दिया है, हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है, और हमने नोपह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इस्राएल एमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांवों को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसकी सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ, और जैसा तूने इमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसे ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी न बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमारी सहायता की है, वचन के आधार से हमारी मदद की है, हमें सच्चाई का सामना कराया, झूठ पर्दाफाश कर दिया है, झूठ हमारे अंदर नहीं है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम मानते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ तू है वहाँ आज़ादी है और तेरी आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 25 चैप्टर 1 वर्स से 12 वर्स, सैम्स 61 चैप्टर से 64 चैप्टर तक, प्रेरितों के काम 25 अध्याय 1 वचन से 12 वचन तक, भजन संहिता 61 से 64 तक। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान को, 2 years बाइबल रीडिंग प्लान को अपने अकेले में व्यक्तिगत समय में हम पढ़ेंगे, जिसके कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर बदलाव लाना चाहेगा तो हम उसे स्वीकार पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं सभियों ने ऐसे ही अकेले में बैठकर एकांत में पर्सनल टाइम में इसे पढ़ना है। आप अपने तरह से पढ़ सकते हैं, जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। निश्चित यही करना है कि परमेश्वर की आत्मा ने हमको सिखाना है, परमेश्वर की आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए, फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना में हमको लेकर आइए। झूठ को पर्दाफाश करके तोड़ कर निकाल दीजिए, हम में से चकनाचूर कर दीजिए। हमारे अंदर उसका स्थान अपना गढ़ बनाकर, घर बनाकर हमारे अंदर रुकने मत दीजिए और हमारा नुकसान करने मत दीजिए। नासरी यीशु के नाम में झूठ को पर्दाफाश करके उखाड़ दो, सच्चाई को हमारे अंदर मजबूत करो। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।